Hello student, my name is Alok Rai and welcome all of you on St. Angel Public School YouTube channel. Today I am here to teach you class 12th computer science, and in this I am teaching you Python and chapter number 5. And name of the chapter is file handling. This is the very important chapter for you for your board examination. Okay, this is very important chapter for your board examination. And in this today we are discuss a very important program, two very important program. First program is create a file with some data separated by new line character without write method. Okay, विदाउट राइट मेथड. ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में ही इसके प्रोग्राम कैसे बनाना है इसके राज छुपे होते हैं, ठीक ना. तो क्या है क्वेश्चन? क्रिएट अ फाइल विथ सम डेटा, create a file with some data separate by new line. What do you understand by some data? Some data means we can enter some data, multiple data, ठीक ना. with separated by new line character. New line character means slash n without using right method. Without using right method means in this we not use the right method. In this we not use the right method. Okay, when we want to perform any operation in a file, then we need to open that file. Okay, when we want to perform any operation in a file, then we need to open that file. हमें उस फाइल को ओपन करने की जरूरत होती है. एंड वी कैन ओपन अ फाइल इन फाइल सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ओपन फंक्शन. And when we use open function, then we pass two parameter in it. First is name of the file. What is the first name? First is name of the file, and second is known as purpose of the file, and second is known as purpose of the file. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट. समझ में आ गया होगा ये दो पैरामीटर क्या हैं. फर्स्ट वन इज नोन एज नेम ऑफ द फाइल, एंड सेकेंड वन इज नोन एज पर्पज ऑफ द फाइल. Here name of the file is student.txt and purpose of the file is append mode. After that we create an empty list. What is list? We are also discussed in our previous video. Okay, when I am teaching you list, it is a chapter in your syllabus. Then I am also tell you what is a list. Okay, then we create a empty list. Okay, then we create a empty list, and in after that we use for loop. Why we are use for loop? Because we want to enter some data in the list. We want to enter some data in the list, and that data we take from user. And data name is name, and we take from user with the help of input function. हम input function की help से user से क्या ले रहे हैं? इनपुट ले रहे हैं, और वो इनपुट क्या है? नेम है. आफ्टर दैट वी स्टोर दैट इनपुट. हम स्टोर कर रहे हैं दैट इनपुट, इस नेम के इनपुट को, नेम को हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं? एम्प्टी लिस्ट में. और किसकी हेल्प से स्टोर कर रहे हैं? अपेंड मेथड की हेल्प से. किसकी हेल्प से अपेंड कर रहे हैं? अपेंड मेथड की हेल्प से. एंड आफ्टर दैट each name we use new line character. और हर नेम के बाद हम क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं न्यू लाइन कैरेक्टर. क्या यूज कर रहे हैं? न्यू लाइन कैरेक्टर. जिससे क्या हो कि सारे नेम जो हो क्या हो? हमारे डिफरेंट लाइन में हमारे स्टोर हो, ठीक ना. उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि देखो, जब लिस्ट में सारे इंफॉर्मेशन हम डाल देंगे, अपेंड कर देंगे, देन वी नीड टू राइट दैट इंफॉर्मेशन इन द फाइल. एंड वी नो दैट राइट मेथड इज यूज टू राइट द इंफॉर्मेशन in file character by character. But at this time we not want to write character by character, we want to write list. Okay, okay, when we want to write in a file a list of information, then we need to use write lines
method. What we use? Write lines method. And in this we pass the list. और इसमें हम क्या पास करेंगे? लिस्ट को पास करेंगे और वो लिस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट. And it is a good habit when we are finish our work with file, then we close that file with the help of close फंक्शन. क्लोज मेथड या फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, उस फाइल को हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं. तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट दी प्रोग्राम. तो चलिए हम इसको करके देखते हैं, इसको हम करके देखते हैं. तो हम क्या करते हैं, पुराने प्रोग्राम को पहले हम मिटा देते हैं. मैंने पुराने प्रोग्राम को मिटा दिया. अब सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मुझे फाइल को ओपन करना पड़ेगा. तो ओपन किसकी हेल्प से करते हैं? विद द हेल्प ऑफ ओपन फंक्शन. ओके, ओपन फंक्शन की हेल्प से हम ओपन करते हैं और इसमें दो पैरामीटर पास करते हैं. कौन कौन सा पैरामीटर पास करते हैं? दो पैरामीटर. पहला नेम ऑफ द फाइल और दूसरा पर्पज ऑफ द फाइल. यहाँ पे नेम ऑफ द फाइल क्या है हमारा? स्टूडेंट है. और पर्पज ऑफ द फाइल क्या है हमारा? अपेंड मोड है. ठीक ना. अपेंड मोड में हमें ओपन करने से क्या फायदा होता है कि जो पुराना डेटा रहता है वो एज इट इज रहता है और जो नया डेटा हम ऐड करते हैं वो उसके लास्ट में जाके क्या होता है, ऐड होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक. तो इसमें क्या होगा कि student.txt फाइल, वी नो दैट student.txt फाइल वी आर ऑल्सो क्रिएट इन आवर लास्ट वीडियो. then it has some data. we want to retain that data. हम उस डेटा को रिटेन करना चाहते हैं, बराबर रखना ही चाहते हैं, डिलीट नहीं करना चाहते हैं. अगर डिलीट करना चाहेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? राइट मोड यूज कर देंगे. अब क्या होगा कि जो डेटा हम इसमें डालेंगे वही डेटा हमें दिखाई देगा, प्रीवियस डेटा क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा. ठीक. उसके बाद हम क्या करते हैं, एक लिस्ट क्रिएट करते हैं. कैसा लिस्ट क्रिएट करते हैं? एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं. कैसा लिस्ट क्रिएट करते हैं? एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं. उसके बाद हम फॉर लूप चलाते हैं. मैंने क्या बोला? फॉर लूप चलाएंगे. फॉर लूप क्यों चला रहे हैं? क्योंकि हम वी वांट टू एंटर मल्टीपल डेटा इन आवर फाइल. हम मल्टीपल डेटा को अपने फाइल में एंटर करना चाहते हैं. तो जिसके लिए हमें क्या चलाना होगा? लूप चलाना होगा. जिससे क्या होगा, हम अपने बार बार लाइन को रिपीट करने से क्या होगा, बच जाएंगे. और हमें डेटा क्या एंटर करना है? नेम एंटर करना है. और यूजर से नेम हम कैसे लेते हैं? यूजर से नेम हम कैसे लेते हैं? विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन. इनपुट फंक्शन की हेल्प से हम क्या लेते हैं? नेम लेते हैं यूजर से. ठीक ना. एंटर दी नेम. हमने यूजर से नेम को क्या करा है? एंटर करा दिया. ठीक. अब जो ये नेम एंटर हुआ इसको हम क्या कर रहे हैं? लिस्ट में हम क्या कर रहे हैं? स्टोर कर रहे हैं. अब देखिए जो हमने लिस्ट बनाया है उसमें हम स्टोर कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया था आप लोगों को, अपेंड मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं? अपने इंफॉर्मेशन को लिस्ट में स्टोर करते हैं. तो मैंने क्या किया? अपने इंफॉर्मेशन को लिस्ट में स्टोर कर दिया. और हर इंफॉर्मेशन के बाद मुझे क्या लगाना है? /n लगाना है. क्यों /n लगाना है? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में दे रखा है कि सभी जो भी इनपुट होगा वो सेपरेट होगा विद द हेल्प ऑफ न्यू लाइन कैरेक्टर. तो न्यू लाइन कैरेक्टर क्या होता है हमारा? /n होता है. ठीक. तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट. सब लोग इसे समझ गए होंगे. अब देखिए ये सारी डेटा जो हो गई हमारे लिस्ट में जाके, लिस्ट 1 में जाके क्या हो गई? स्टोर हो गई. नाउ वी नीड टू राइट दैट लिस्ट इनटू फाइल and that file name is student.txt. then we need to use write lines method. Why we are use write lines method? Why we are not use write method? Okay, we know that write method is used to write character by character in a file, but at this time we not want to write character by character in a file. We want to write list in a file. When we want to write list in a file, then we use write lines method. Okay, then we use write lines method. Okay, write lines method. And in this we pass the list that we want to write. After that a good habit is we close our file after completing the work. when we run it, जब हम इसको रन कराएंगे तो देखो जब हम इसको रन कराएंगे
देखो जब हम इसको रन कराएंगे तब ये क्या होगा, हमसे नेम मांगेगा। अब ये हमसे 5 नेम मांगेगा। मैंने पहला नेम डाल दिया आलोक, दूसरा नेम डाल दिया मोदी, तीसरा नेम मैंने डाल दिया राहुल गांधी, ठीक, चौथा नेम मैंने डाल दिया शीला, पांचवा नेम मैंने डाल दिया ट्रम्प, ट्रम्प, ठीक ना। मैंने पांचों नाम डाल दिए। अब जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये देखिए मेरा प्रोग्राम कोई आउटपुट नहीं दिया। क्यों क्यों कोई आउटपुट नहीं दिया? क्योंकि ये आउटपुट क्या दे रहा है कि ये आउटपुट दे रहा है फाइल में राइट करने का। तो अब हम देखेंगे तो ये 5 के 5 नेम हमारे क्या होंगे, फाइल में राइट हो गए होंगे। तो चलिए हम अपने फाइल को ओपन करते हैं। तो वी नो दैट हम अपने फाइल को कहाँ पे सेव कर रखे हैं, हम अपने फाइल को ई ड्राइव में देव फोल्डर के अंदर सेव कर रखे हैं। और फाइल का नाम क्या है, हमारा फाइल का नाम क्या है, student.txt। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये पांचों डेटा हमारे पास क्या आ गए, राइट होके आ गए। अब देखिए इसमें पुराना डेटा क्या हो गया, हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि हमने राइट मोड में ओपन किया था। राइट मोड क्या करता है, फाइल अगर है तो उसे क्या करता है, ओपन करता है, और इसमें जो पुरानी डेटा है उसको क्या कर देता है, ओवरराइट कर देता है, मतलब डिलीट कर देता है, ठीक। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। मैं आशा करता हूँ सब लोग इसे समझ गए होंगे, क्योंकि ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था और इम्पॉर्टेंट भी था, ठीक। और मैंने इसीलिए इसको थोड़ा धीरे समझाया भी है और बहुत जोर दिया है। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे। तो चलिए हम आज के दूसरे प्रोग्राम पे चलते हैं। दूसरा प्रोग्राम है हमारा राइट अ प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू गेट। मैंने ध्यान से सुनना, क्योंकि प्रोग्राम में ही प्रोग्राम को कैसे बनाना है ये कोडिंग छुपी है। प्रोग्राम की कोडिंग प्रोग्राम के क्वेश्चन में ही छुपी होती है। राइट अ प्रोग्राम टू गेट रोल नंबर, क्या करना है, टू गेट रोल नंबर, नेम एंड मार्क ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, मार्क ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ क्लास, गेट फ्रॉम यूजर। ये इनपुट कहाँ से लेना है, यूजर से लेना है। एंड स्टोर दीज डिटेल, एंड स्टोर दीज डिटेल इन अ फाइल कॉल्ड mark.txt। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। उसमें क्या दिया रहेगा, वेरिएबल का नाम दिया रहेगा। देखिए वेरिएबल का नाम क्या दे रखा है, रोल नंबर दे रखा है, नेम दे रखा है और मार्क दे रखा है। उसके बाद उस फाइल का नाम भी दे रखा है जिसमें आपको ये इंफॉर्मेशन स्टोर करना है। तो अब हम अपने मर्जी से इनका नाम नहीं लेंगे। अब जो प्रोग्राम के क्वेश्चन में दे रखा है, हम अपने प्रोग्राम में उसी वेरिएबल को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ना कि अदर वेरिएबल को यूज करेंगे, ठीक ना। और टेक्स्ट फाइल का नाम भी हम वही यूज करेंगे जो हमारे फाइल में क्या कर रखा है, दे रखा है, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, एक क्लास में बच्चे जो हैं उनका रोल नंबर, नेम और मार्क एंटर कराना है। तो अब देखिए एक क्लास में मल्टीपल स्टूडेंट हो सकते हैं ना, हो सकते हैं, क्या होते हैं, ठीक। आप लोगों की भी क्लास में होते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने कहा हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास। मैंने क्या कहा, पूछा कि क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। ओके, उसके जब मैंने पूछ लिया तो अब मुझे क्या करना है, mark.txt फाइल को ओपन करना है। और किस किस मोड में ओपन करना है, देखो बेटा हम इसको अपेंड मोड में क्यों ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक समझना। क्योंकि अगर हम अपने क्लास में जैसे हमारे पास क्लास में 20 स्टूडेंट हैं और 10 स्टूडेंट का डेटा हमने एक बार ऐड कर दिया, और आफ्टर दैट वी वांट टू ऐड 10 अदर स्टूडेंट डेटा। तो क्या हम ऐसा चाहेंगे कि वो डेटा हमारा जो पहले 10 स्टूडेंट का हमने ऐड किया था वो डिलीट हो जाए? हम ऐसा नहीं चाहेंगे। हमें 20 स्टूडेंट है तो 20 स्टूडेंट का डेटा मेंटेन करना है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अपेंड मोड का यूज करेंगे, ठीक ना। इसलिए हम यहाँ पे राइट मोड का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे। तो अब हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमें क्या करना है, फाइल को ओपन करना है और फाइल का नाम क्या देना है हमें, mark.txt। और इसको किस मोड में हमें ओपन करना है, अपेंड मोड में ओपन करना है। अब उसके बाद हमें क्या चलाना है, लूप चलाना है, फॉर आई इन रेंज, फॉर आई इन रेंज। और लूप को कितनी बार चलाना है, जितना बच्चे हैं उतनी बार इस लूप को चलाना है।
और इस लूप में हमें हर बार क्या करना है, बच्चों का इंफॉर्मेशन लेना है, बच्चों का नाम लेना है इंफॉर्मेशन, बच्चों का रोल नंबर लेना है, और बच्चों का क्या लेना है, मार्क लेना है। वी नो दैट हाउ टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, हम जानते हैं कि यूजर से हम कैसे इनपुट लेते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ इनपुट फंक्शन वी टेक द इनपुट फ्रॉम द यूजर, with the help of input function we take the input from the user, and input function take the input from user as a string। okay, कैसे इनपुट लेता है, एक स्ट्रिंग के फॉर्म में इनपुट लेता है। in this name is string, so we need not to convert that into string because input function already take the input as a string। roll number is take as a input string, so we need to convert it in integer। mark is also input function take as a input string, so we need to convert it float। okay, and after that we store into a variable that name is record। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल में इन वैल्यू को हम क्या करते हैं, स्टोर कराते हैं, जिसका नाम क्या रखते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं। अब देखिए मैं शुरू के ही लेक्चर में बता दिया था स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, मैंने क्या बताया था, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। वी नो दैट वी कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग विथ स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग के साथ ही स्ट्रिंग को ही कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। वी नॉट कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग विद द इंटीजर, हम इंटीजर के साथ स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। तो देखिए अब हमें सिंपली क्या करना है, इस रिकॉर्ड नाम के वेरिएबल में हमें इन तीनों इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है। तो इन तीनों इन्फॉर्मेशन का डेटा टाइप हम क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। और किस में चेंज कर देते हैं, स्ट्रिंग में। तो उसके लिए हम यूज करते हैं str फंक्शन। क्या यूज करते हैं, वी यूज str फंक्शन टू कन्वर्ट इंटीजर फ्लोट इनटू स्ट्रिंग। तो हमने क्या किया, रोल नंबर को स्ट्रिंग में चेंज कर दिया, कॉमा दिया, उसके बाद हमने नेम को क्या कर दिया, नेम हमारा स्ट्रिंग में ऑलरेडी है, उसके बाद फिर हमने कॉमा दिया, और उसके बाद हमने क्या कर दिया, str मार्क कर दिया। ठीक ना, हमने मार्क को भी क्या कर दिया, फ्लोट से स्ट्रिंग में चेंज कर दिया। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, न्यू लाइन कैरेक्टर दे दिया, जिससे ये एक लड़के का इंफॉर्मेशन एक लाइन में होगा और दूसरे लड़के का इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, हमारा दूसरे लाइन में स्टोर हो जाएगा। आफ्टर दैट वी यूज राइट मेथड, राइट मेथड इज यूज टू स्टोर डेटा इन अ फाइल। राइट मेथड किस लिए यूज होता है, डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे एक फाइल में। और गुड हैबिट, इट इज अ गुड हैबिट, व्हेन वी डन आवर वर्क देन वी क्लोज दी फाइल। ओके, तो अब देखिए, चलिए इस प्रोग्राम को हम, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, सब लोग इस प्रोग्राम को समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं। क्या करा के देखते हैं, इस प्रोग्राम को हम रन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाना होगा, जिसमें ये बताना होगा कि कितने लड़के हमारे पास क्या हैं, कितने लड़के हमारे स्कूल में हैं। ठीक ना, तो मैंने क्या करा दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट को मैंने क्या करा दिया, इसमें एंटर करा दिया। ठीक ना, उसके बाद मुझे क्या करना है, फाइल को ओपन करना है। ठीक ना, अब फाइल को ओपन करना है तो क्या यूज करेंगे, हम ओपन फंक्शन यूज करेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं, फाइल का नाम डालेंगे, जो फाइल का नाम हमें दे रखा है क्वेश्चन में वही डालेंगे। फाइल का नाम क्या है हमारे पास, mark.txt, तो हम mark.txt डालेंगे और इसको ओपन करेंगे अपेंड मोड में। किस मोड में हम ओपन करेंगे, अपेंड मोड में। और क्यों अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे जानते हैं मैं अपेंड मोड में क्यों ओपन कर रहा हूँ। ठीक ना, उसके बाद मुझे क्या करना है, लूप चलाना है। क्या चलाना है, लूप चलाना है फॉर आई इन रेंज, और रेंज क्या रखना है लूप का, और रेंज रखना है काउंट। ठीक ना, जितने बच्चे हैं उतने हमें क्या करने हैं, नंबर को एंटर कराने हैं। ठीक ना, उसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट करा दिया। मैंने क्या प्रिंट कराया, एंटर दी स्टूडेंट डिटेल, मैंने स्टूडेंट का डिटेल एंटर करा दिया। अब बताओ स्टूडेंट का डिटेल क्या क्या बोला है एंटर कराने के लिए, पहला रोल नंबर बोला है, पहला क्या बोला है,
रोल नंबर बोला है तो हमें यही लिखना होगा, हम अपने मर्जी से कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक ना। पहले रोल नंबर उसने एंटर कराने के लिए बोला है, तो हमने क्या किया, इसमें रोल नंबर एंटर करा दिया, ठीक ना। क्या किया हमने, रोल नंबर एंटर करा दिया, ठीक ना। तो देखो हमने क्या कर दिया, नंबर रोल नंबर एंटर करा दिया। उसके बाद क्या बोला है, नेम एंटर कराने के लिए बोला है, क्या बोला है, नेम एंटर कराने के लिए बोला है। तो मैंने क्या करा दिया, नेम एंटर करा दिया, ठीक। अब यहाँ पे मैंने क्या करा दिया, नेम एंटर करा दिया, ठीक। उसके बाद इसने क्या बोला एंटर कराने के लिए, चलिए आप लोग भी बोलिए, बोलते रहिए, बोलने से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। उसके बाद इसने बोला है मार्क एंटर कराओ, क्या एंटर कराओ, मार्क एंटर कराओ, ठीक ना। मार्क को भी मैंने क्या करा दिया, एंटर करा दिया, मार्क को भी मैंने क्या करा दिया, एंटर करा दिया। और ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा कि मैं मार्क के आगे ये फ्लोट क्यों लिखा, मार्क के आगे मैं फ्लोट क्यों लिखा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया है, ठीक। तो मैंने क्या करा दिया, मार्क्स एंटर करा दिया, ठीक। अब उसके बाद देखो इन सबको मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल में कॉनकैटिनेट कर दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ, एक वेरिएबल में मैं क्या कर दे रहा हूँ, कॉनकैटिनेट कर दे रहा हूँ। तो उस वेरिएबल का नाम है रिकॉर्ड, और इसमें मैं कॉनकैटिनेट कर रहा हूँ रोल नंबर। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट वी कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग विथ स्ट्रिंग, नॉट इंटीजर फ्लोट विथ स्ट्रिंग, ओके। तो हमें जो इंटीजर फ्लोट में है उसे क्या करना होगा, हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या यूज करते हैं, str फंक्शन यूज करते हैं। और मैंने क्या किया, रोल नंबर को मैंने क्या कर दिया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो मैंने क्या किया, कॉमा से सेपरेट किया, कॉमा से मैंने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से, ठीक ना। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मुझे क्या करना है, नेम लिखना है। तो नेम ऑलरेडी स्ट्रिंग में है, तो इसके लिए मुझे कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं। इसको भी मैंने क्या किया, कॉमा से सेपरेट कर दिया। उसके बाद देखो हमारे पास क्या है, मार्क्स है, क्या है हमारे पास, मार्क्स। तो मार्क्स हमारे पास क्या है, मार्क्स हमारे पास क्या है, फ्लोट में है, तो इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने मार्क को भी मैंने क्या किया, फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब इसको मैंने क्या कर दिया, फाइल में लिख दूंगा। फाइल में कैसे लिखूंगा, विद द हेल्प ऑफ राइट मेथड की हेल्प से मैं लिखूंगा। किसकी हेल्प से लिखूंगा, राइट मेथड की हेल्प से लिखूंगा। और मैं क्या करूंगा, इसमें रिकॉर्ड को पास कर दूंगा। देखो जब हमने सब काम कर लिया, तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमने अपना सारा काम कर लिया, तो मुझे क्या करना होगा, फाइल को क्लोज करना होगा। फाइल को हम क्लोज कैसे करते हैं, क्लोज मेथड की हेल्प से, ठीक। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, ठीक। सब लोग इसे समझ गए हों। तो चलिए हम इसको रन करा के देखते हैं। जैसे ही हम इसको रन कराएंगे, ये हमसे मांगेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैंने 2 डाल दिया, ठीक ना, 2 स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन मुझे डालना है, मैंने 2 डाल दिया। अब देखो ये क्या करेगा, इंटर स्टूडेंट स्टूडेंट इंटर स्टूडेंट। अच्छा यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, इसलिए 6 आया। आप लोग घबराना मत, यहाँ पे टाइप हो गया 6 इसलिए आया, बाकी कुछ नहीं है 6। अब देखो रोल नंबर मांगा, मैंने 1 डाल दिया। नेम मांगा, मैंने ABC डाल दिया। अब इसने मार्क मांगा, मैंने 23 डाल दिया, ठीक। फिर दूसरा दूसरा बच्चे का मांगा इसने, मैंने रोल नंबर 2 डाल दिया। नेम मांगा, मैंने क्या डाल दिया, XYZ डाल दिया। अब इसने मार्क मांगा, मैंने क्या डाल दिया, 77 डाल दिया। अब जैसे ही मैं इसको एंटर करूंगा, ये देखिए हमारा दूसरा टर्मिनल खुल गया। इसका मतलब ये सारी चीज़ें क्या हो गई होंगी, हमारे फाइल में जाके सेव हो गई होंगी, हमारे फाइल में जाके सेव हो गई होंगी। और कौन से फाइल में सेव हो गई होंगी, हमारा mark.txt फाइल में सेव हुई होंगी। तो चलिए हम खोल के देखते हैं ये जहाँ पे सेव होगा। तो कहाँ, जहाँ पे सेव होगा हम जानते हैं कहाँ पे सेव होगा, हमारा ई ड्राइव में देव के अंदर हम सारे फाइल सेव करते हैं, तो इसी के अंदर हो ये बना होगा। और यहाँ पे देखिए ये मार्क नाम का हमारे पास, mark.txt नाम का हमारे पास बन भी गया। क्या बन गया हमारे पास, mark.txt नाम का हमारे पास बन गया फाइल। अब इस फाइल को जैसे ही हम ओपन करेंगे, चले हम अपने रिकॉर्ड में /n लगा देते हैं, ताकि हर रिकॉर्ड हमारा क्या हो, दूसरे एक लड़के का रिकॉर्ड क्या हो, एक ही लाइन में आ जाए। और यहाँ पे हम राइट लाइन्स लगा देते हैं। क्यों राइट लाइन लगाएंगे, क्योंकि राइट अगर लगा देंगे तो वो एक एक कैरेक्टर को राइट करने लगेगा। और एक एक कैरेक्टर को राइट करने लगेगा तो रिकॉर्ड में मल्टीपल कैरेक्टर हैं, तो उसमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैंने क्या लगा दिया, राइट लाइन मेथड लगा दिया। अब चलिए हम इसको रन कराते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन कराऊँगा।
अब जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने 3 डाल दिया, 3 स्टूडेंट हैं। रोल नंबर 1 डाल दिया, आलोक डाल दिया, नेम आलोक डाल दिया, मार्क डाल दिया मैंने 99। फिर मैंने डाल दिया रोल नंबर 2 डाल दिया, मार्क डाल दिया देव, और इनका नेम मैंने देव डाल दिया और मार्क डाल दिया 100। ओके। उसके बाद मैंने रोल नंबर 3 डाल दिया, नेम मैंने जय डाल दिया और मार्क मैंने डाल दिया 89। ठीक। तो चलिए अब इसको देखते हैं ये हमारे फाइल में सेव हुआ है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल को ओपन करूँगा। और देखो इस फाइल को ओपन कहाँ से करूँगा, मैंने ऑलरेडी कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इस फाइल को ओपन करता हूँ। जैसे मैं फाइल को ओपन करूँगा, आप लोग देखिए आलोक देखिए रोल नंबर 1, रोल नंबर क्या आया 1, और आलोक 99। ठीक ना, ये इन्फॉर्मेशन पहले से हमारी स्टोर थी। ठीक। उसके बाद दूसरा इन्फॉर्मेशन रोल नंबर 2 देव, और मार्क कितने आ गए 100.0, क्यों, क्योंकि डेसिमल है मार्क। उसके बाद जय, और जय के बाद क्या आ गया हमारे पास 89.0। ठीक। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट, सब लोग इसे समझ गए होंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सेंट एंजल पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि इस वीडियो का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग उठा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।